Okay, so let us start freshly now. Group theory. I think previously in the last portion of the previous video, I mispronounced group as graph. So please forgive me for that. But okay, graph theory. Sorry, group theory. Okay, group theory. For the group theory, the main questions from the interviewer side would be that you are given a set and operation, and you need to check whether the given set including the operation is a group or not, right? So for that we need to check one, two, three, four properties, right? First property is the closure property. Closure property means what? That uh, if okay, so A is said to be closed with respect to, let us say, a binary operation star, right? If for all A comma B belongs to A operation B also belongs to A, right? So this particular case we call it as the closure property. Second property, and if a set and an operation satisfy this closure property, we call it as algebraic structure, right? So algebraic structure means what? A non-empty set A is said to be the algebraic structure with respect to star, right? If A satisfies the closure property with respect to star. Okay, the second property is the associative property. Associative property means what? कि भैया अगर हमारे पास में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट? एंड इफ this property is also satisfied along with the closure property, okay, if a set satisfy closure as well as associative property, then in that case that particular set will be called as semi group with respect to star, okay, semi group, ठीक है ना? थर्ड इस केस में क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी व्हाट वी नीड टू चेक? Third property which we need to check is identity property, okay? Identity property क्या है भैया कि for all A belongs to A, ठीक है, there exists an element E which also belongs to A such that, ठीक है, A ऑपरेशन E is equal to E ऑपरेशन A is equal to A, ठीक है, और ये E यूनिक होना चाहिए, राइट? यूनिक मीन्स व्हाट? That for all the elements there exists only one identity element. For all the elements in the set there exists exactly one element, one, sorry, identity element, right? Identity element. Remember, this identity element should also belong to that particular set, okay? And if our set satisfies the first three properties, means what? Closure property, associative property, and then identity property, then we call it as monoid, ठीक है? हम लोग इसको क्या बोलेंगे? Monoid. And the last property for a set to be called as a group is the inverse property.
इनवर्स प्रॉपर्टी। नाउ इनवर्स प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होगी? दैट फॉर ऑल, राइट, for all the elements which belongs to the set A, we should find there exists some element, right, B belongs to A, such that A operation B is equal to B operation A is equal to E, right, and the inverse of each element would be different. Okay, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आपको आ रहा है? Each element would have different inverse. So no two element can have the same inverse. Okay, and if our set follows all these four properties, that means closure property भी satisfy हमारी हो गई है, associative property भी हमारी satisfy हो चुकी है, identity property भी हमारी satisfy हो चुकी है, right, and inverse, then that particular set we call it as a group, right, over operation कौन सा है जो मतलब जो भी ऑपरेशन पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ग्रुप ओवर ऑपरेशन स्टार। ओके, एंड इसमें एक और एडिशनल प्रॉपर्टी है जो कि अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भैया ये एबेलियन ग्रुप है। ओके, दिख रहा है क्या आपको? ग्रीन, येलो, येलो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, वेट, येलो, अरे भाई, येलो येलो, ओके, येलो, राइट, हाँ अभी दिख रहा है, राइट, क्लियरली। ओके, द फिफ्थ प्रॉपर्टी which I'm going to call it is the commutative property. Commutative property, अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या यार कि आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो उस पर्टिकुलर सेट के, तो उसमें ए ऑपरेशन बी वुड बी इक्वल टू ए ऑपरेशन, सॉरी, बी ऑपरेशन ए अगर आ जाता है, देन वी कॉल इट दैट सेट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड इफ आवर क्या बोलते हैं, जो भी हमारा सेट है वो इन पांचों प्रॉपर्टीज को फॉलो अगर करता है, राइट, देन वी कॉल इट एज कि भैया if all the five properties are satisfied, right, then the set would be called as abelian group। ठीक है, okay, next important factor which we need to, you know, uh, have a look at is the order of a group। order of a group, group का order क्या होता है, right? The order of the group is nothing but the number of elements in the group, right? Number of what? Elements in the group. And remember, order of a group is always divisible by, exactly divisible by, okay, exactly divisible by क्या, ये दिख रहा है क्या आपको? ओके,
नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप, राइट, ये दिख रहा है राइट आपको, ओके, ये इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑर्डर ऑफ इट्स सब ग्रुप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इट्स सब ग्रुप। एक छोटा सा पॉइंट है, स्टार करके आप लोग इसको लिख सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज इक्वल टू सब ग्रुप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, सब ग्रुप का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में से हमने सब ग्रुप को बनाया है, ठीक है। अभी ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ क्या, एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। इसका मीनिंग ये है कि वी नीड टू फाइंड n which is smallest positive integer, right, such that a की पावर n will be equal to e। एलिमेंट क्या है हमारे इस केस में, ए ऑपरेशन एन, ऐसा n टाइम्स में हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए, राइट। देन वी कॉल n टू बी द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। इस केस में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट and its inverse will always be same, right. Right, now we need to discuss about the generating element, और जनरेटर भी बोल सकते हो आप इसको, और व्हाट, जनरेटर। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, वी डिस्कस अबाउट द व्हाट, लेट मी जस्ट, ओके, group theory, right. Four properties: closure, associative, identity and inverse. If these four properties are satisfied, then we call it as a group. Fifth property में क्या होता है, commutative property, then we call it as abelian group, right. Okay, then we have discussed about the order of a group. The meaning of the order of a group means the number of the elements which are present in that group, right. Then we discuss about the order of an element n, ठीक है ना, a की power n is equal to v, then n is called as what, the order of an element. Now we need to discuss about the generator, right. Generating element के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। Okay, so the definition is an element of a group is called as a generating element if every element of that group is an integral power of an element A, okay, integral power of A. Now what I will do it, I will take a example and I will understand, and I will also explain to you guys as well that how to find out the generating element, or how to verify whether a element is a generating element or not, ठीक है। Okay, so now let us say that we have a question, and we have given this particular table where the operation is mentioned that operation A will be equal to
A, then A operation B will be equal to B, so like that. And we need to find whether D is a generating element or not, right? So for this, what we need to do, we just need to check the integral power of D. If integral powers of D explains or produces all the elements in the state, that is A, B, C, D, then D is obviously a generating element, right? D to the power 1, we have not performed any operation, then that means D. So we have produced D, right? D square means what? D operation, the operation which is given to us star D cross D. D cross D means what? D, D. यहाँ पे आ गया हमारा B, right? तो B is also produced D cube means what? D operation D operation D means what? This is equal to B, right? B operation D. B operation D. C. Okay, C has been also produced. Now only one is remaining, right? A. D to the power 4. That means B cross B, right? Because D cross D will be equal to B. So B cross B will be equal to what? A. We have got A, right? So this means that D is a generating element. Hence we can say D is a generating element. Okay? Okay. Now let us discuss about the cyclic group. Okay? Cyclic group. साइक्लिक ग्रुप क्या है असल में? ओके, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन ही है कि इफ अ ग्रुप कंटेन्स एटलीस्ट वन जनरेटर. ओके, इसका मीनिंग ही यही है. क्या है इसका मीनिंग? इफ ग्रुप कंटेन्स व्हाट? एटलीस्ट, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट? ओके, इफ ग्रुप कंटेन्स एटलीस्ट वन जनरेटर, then we can call that group as cyclic group. इसमें दो तीन important points हैं. The first point is, if a element is generating element in a cyclic group, then its inverse would also be the generating element. Right? And the second important point is, order of cyclic group, that means the number of the elements in the cyclic group, will be equal to order of the generating element. Of that particular group. One more important point is there, that is, group of order prime number is always cyclic. It means that if the number of elements in the group is, let's say, 5, then 5 is the prime number, right? So this means that it is the cyclic group. This is a very powerful, concept. अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि important है. Okay, so we have given that let G is a cyclic group of order 8. ठीक है, and we have to find the number of generators of G.
ठीक है। तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, राइट। सो लेट, मैं इसमें ये कर रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को ले रहा हूँ n, ठीक है। तो नंबर ऑफ द जनरेटर्स विल बी n into p1 minus 1, p2 minus 1, p3 minus 1 डॉट डॉट अपॉन p1, p2, p3, ये सब चीज़ें। अभी p1, p2, p3 इसमें क्या है, राइट। p1, p2, p3 आर व्हाट, p1, p2, p3 आर नथिंग बट दी व्हाट, p1, p2, p3 ये क्या है असल में, p1, p2, p3 है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे 8 है, राइट। तो p1 2 आएगा, 4 तो नहीं आएगा, राइट। तो ओनली 2 विल बी देयर, राइट। देयरफॉर नंबर ऑफ द जनरेटर्स क्या होंगे इस केस में, नंबर ऑफ जनरेटर्स वुड बी इक्वल टू n की वैल्यू थी 8, 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो इस केस में आएगा ये 4। तो देयर विल बी 4 जनरेटर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ वी हैव गिवन दिस पर्टिकुलर सेट, ठीक है, 0 से लेकर के m-1 तक, एंड ऑपरेशन विच इज द प्लस m का मीनिंग क्या है भाई, कि अगर, ठीक है ना, a प्लस एम बी, तो इसका मीनिंग क्या होगा, a प्लस बी, ठीक है। बट अगर इफ इट एक्सीड्स m, देन आप इसमें -1 करोगे, राइट। तो ये होगा या फिर ये होगा, राइट। इफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, एल्स, ठीक है ना। सही बात है इतनी। Okay, so now let us discuss about the graph theory. Okay, we are done with the group theory and some important points which the interviewer can ask you. Now we will discuss about the graph theory. Okay, first point, what is the meaning of pendant vertex? Pendant vertex means vertex which has the degree 1. Okay, Havel-Hakimi theorem you must have read in the GATE preparation. This is valid for only simple and non-directed graph only. Okay, and you already know, you know, the procedure, right? So I'm not going to explain you that. Euler graph का meaning क्या है, you should take a closed walk so that all the edges, not vertices, okay, all the edges of a graph should be covered. Closed walk containing all the edges of a graph. And the simple way, you know, to identify whether this is a Euler graph or not, you should just check the vertices and their degrees. If the degrees of all the vertices are even, then it automatically means that it is the what, Euler's graph. Okay, now let's discuss about the Hamiltonian graph. All right, Hamiltonian graph means what, you need to traverse the vertices in a single go. Okay, you need to traverse the vertices only once. And let us say that G is a non-directed complete graph. Okay, on n vertices, n is greater than or equal to 2, then number of the the number of the different Hamiltonian cycles would be n minus 1 factorial upon 2. This is the formula which you need to remember. Different Hamiltonian cycles. Okay, null graph means what, only vertices, no edges. Trivial graph means what, only one vertex. Okay, only one vertex. Trivial means what, only one vertex. Now let's discuss about the non-planar graphs. Planar graphs means what? The graph which can be drawn on a plane. That means there is no intersection of the edges, right? Simplest non-planar graphs, as explained by the Kurushevsky,
Kurosawaski's case 1 is the K5 and case 2 is the K33. K5 means what? It is the complete undirected graph on 5 vertices like pentagon, and each vertex is connected to every other vertex of that particular pentagon. K33 means what? It is the in this particular fashion, right? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Does anybody know? Wait a second. Okay, one more thing. Regular graph की definition क्या होती है? Every vertex has same degrees. Okay, same degree. If every vertex has the same degree, then we call it as what? Regular graph. ठीक है? Yes, so what I was saying was that this type of graph is called as complete bipartite graph, where you are dividing the vertices into the two sets, and each vertex in each set is related to every other vertex in the other set, but not in that set. Okay, और ये दोनों असल में एक ही चीज़ है, ठीक है ना? ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ असल में एक ही चीज़ है, एंड दीज आर द सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर अनडायरेक्टेड ग्राफ्स. And one more thing, that they are regular as well because each vertex has the same degree. If we delete an edge or vertex, ठीक है ना, then the graph will become planar. In any non-planar graph via homomorphism, if we get either K5 or K3, then non-planar ही वो रहेगा. मतलब क्या कि in any कोई भी आप नॉन प्लेनर ग्राफ ले लीजिए, उसमें बाय होमोमॉर्फिज्म you will easily get K5, K33. I will explain you the meaning of homomorphism after few minutes, okay? But just remember this thing for now. यूलर्स ग्राफ का मीनिंग क्या है भाई? सॉरी, हाँ, यूलर्स ग्राफ का मीनिंग तो हम लोगों ने देख लिया, राइट? यूलर्स ग्राफ का मीनिंग क्या है? दैट वी नीड टू ट्रेवर्स एजेस, ठीक है ना? ई फॉर ई, यूलर बोले तो एजेस, ठीक है, बट हैमिल्टोनियन अगर वो पूछेगा तो वर्टिसेस. ओके, वी नीड टू ट्रेवर्स द वर्टिसेस ओनली वंस. यूलर्स फॉर्मूला है एक, r is equal to e minus v plus 2. दिस इज वैलिड ओनली फॉर द प्लेनर, ठीक है, ग्राफ्स प्लस कनेक्टेड. प्लेनर ग्राफ्स ही होने चाहिए और कनेक्टेड होने चाहिए. डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है. ओके, इफ द ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड देन द फॉर्मूला वुड बी r minus k is equal to e minus v plus 1, where here r is what? The number of the regions, ठीक है, or number of the faces, and in the second point k is the number of connected components, ठीक है. Okay, any planar graph is at most 5 chromatic. Any planar graph is always 4 chromatic. The chromatic number of a graph is less than or equal to 1 plus delta of g, and delta of g would be the maximum degree of any vertex which is present in that particular graph. Okay, a complete graph kn is always n chromatic. A graph with more than one edge is at least 2 chromatic. ठीक है, tree is always 2 chromatic because दो तो कलर तो हमको चाहिए ही, right? A graph with n vertices and n minus 1 edges plus no circuit is there is called as what? Tree भैया, tree. Tree में cycle नहीं होती है. If you have n vertices then the edges would be n minus 1, right? Eccentricity का meaning क्या है? Shortest distance between the two vertices. Shortest path between farthest vertices. शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बिटवीन फार्देस्ट वर्टिसेस, राइट? चलो, तो ये पेज तो हमारा हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू सम प्रॉब्लम्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स. सिंपल ग्राफ का मीनिंग क्या है? वेयर देयर इज नो लूप, नो सेल्फ लूप और नो पैरेलल एज, ठीक है ना?
मतलब कि सेल्फ लूप भी नहीं है और ऐसे पैरेलल एज भी नहीं है दो वर्टेक्स के बीच में, ठीक है। Number of the simple graphs possible with n vertices and edges, with n vertices and e edges, ठीक है ना, क्या हो सकते हैं, राइट। सो वी हैव n vertices like this, right, n vertices है हमारे पास में and we want e edges, right। so we can select हम लोग इस केस में क्या select कर सकते हैं। okay, let us first choose the pairs, nc2 बनेंगे pairs total, और इन पेयर में हमको ई एजेस डालने के, राइट। तो nc2 इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, ओके, विच वी विल गेट। उसमें से हमको ई पेयर्स को सेलेक्ट करने का एंड उसमें हमको एजेस जो है वो डालने की, राइट। दिस इज द आंसर। खत्म हो गई यार बात। दिस इज व्हाट नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स इन टोटल। ठीक है, ओके ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी that the maximum number of edges in a bipartite graph on 12 vertices is, तो यार we need to form the group of you know vertices। तो ग्रुप, एक ग्रुप में 1 हो सकता है, दूसरे ग्रुप में 11 वर्टिसेस हो सकते हैं। तो ऐसे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हाट एजेस, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्टिमलिटी देन यहाँ पे हम लोग लेंगे 6 वर्टिसेस और यहाँ पे भी लेंगे 6 वर्टिसेस, and the total number of the vertices total number of the edges, the maximum would be in the case of complete bipartite graph, right। so 6 into 6 36 would be the answer, ठीक है। ये हो गया क्रोमेटिक नंबर का, देख लिया हमने। इसेंट्रिसिटी का भी देख लिया, राइट, कि डिस्टेंस फ्रॉम v to the vertex farthest from v in the graph, right, shortest path between the farthest vertices। इसेंट्रिसिटी का मीनिंग यही है। ओके, इसेंट्रिसिटी की हेल्प से हाउ कैन वी फाइंड द सेंटर्स ऑफ द ट्री, राइट। सो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि रिमूव ऑल द पेंडेंट वर्टिसेस वंस, यानी कि जिनकी डिग्री 1 है उनको हटा दो, राइट, एंड कीप रिपीटिंग दिस। if you will get either edge or a simple vertex then we call it a center, right। वो edge के दो vertices भी center हो सकते हैं, या फिर if you get a single vertex then that also can be called as the center। अच्छा, spanning tree का जो concept है कि नहीं, that is valid only for a connected graph, ठीक है। spanning forest भी हो सकता है obviously, but spanning tree specifically, spanning tree जो है वो connected graph के लिए ही। बहुत ज़्यादा बचा हुआ है यार अभी भी, ठीक है, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, ओके। yes, so an edge in the spanning tree is called as branch, ठीक है। ये तो branch and cord, हाँ, ये हमको चीज़ें ध्यान में रखनी की। an edge that is not present in the given spanning tree is called as cord, ठीक है। with respect to any spanning tree, a connected graph of n vertices and e edges has n minus 1 branches and e minus n plus 1 cords। हमको याद रखने का है यार ये पॉइंट, ठीक है ना।
n वर्टिसेस है हमारे टोटल ग्राफ पे, राइट? तो स्पैनिंग ट्री में कितने एजेस होंगे? n-1 होंगे, राइट? एजेस। एंड कॉर्ड्स हमको कितने चाहिए टोटल? कॉर्ड्स प्लस ब्रांच is equal to total number of the edges that is present in the graph, right? So e minus n plus 1 ही होंगे. A connected graph G is called as a tree if and only if adding an edge between any two vertices in a graph creates exactly one cycle. ये तो common sense वाली बात है यार. Rank is equal to n minus 1. अच्छा, rank in the case of what? Spanning tree. Okay, I'm talking about rank means what? Number of the branches, and nullity means what? Number of the chords. Rank plus nullity is equal to total number of the edges, which I have discussed with you earlier. अगर स्पैनिंग फॉरेस्ट की बात हम लोग करते हैं, ओके, तो k वुड बी द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, देन उस केस में रैंक की वैल्यू क्या आएगी? n माइनस के, एंड नलिटी की वैल्यू क्या आएगी? e माइनस n प्लस के. तो रैंक प्लस नलिटी की वैल्यू क्या आएगी इस केस में? रैंक प्लस नलिटी की वैल्यू क्या आएगी इस पर्टिकुलर केस में? e ही आएगी, राइट? रैंक क्या है? n माइनस के है. n is the total number of the vertices in that graph, जो कि जो कि क्या है? जो कि डिसकनेक्टेड है. ओके, ठीक है. नाउ कट सेट, ये जो चीजें हैं ना, ये देखते हैं अपन लोग, ठीक है. ऑलराइट, सो last few portions are only remaining, then we will wind up the second portion of the discrete mathematics. All right, नंबर ऑफ द एजेस इन द स्मॉलेस्ट कट सेट. कट सेट का मीनिंग क्या भैया? कि कट सेट हम लोग दो रेफरेंस में यूज करते हैं, एक तो एजेस के रेफरेंस में एंड वन विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिसेस. एजेस के रेफरेंस में हम जब भी कट सेट का मीनिंग देखते हैं तो ये होता है कि हाउ मेनी एजेस शुड बी रिमूव सो दैट द ग्राफ बिकम डिस्कनेक्टेड, एंड दैट शुड बी मिनिमल. ओके, मतलब कि इफ वी फाउंड आउट दीज थ्री एजेस दैट when we remove these three edges, then the graph will become disconnected. Then if after removing some edges from that set still the graph becomes disconnected, then that means that set is not a cut set. ठीक है, वो मिनिमल ही होना चाहिए, इसका मतलब उससे छोटा कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, so the number of the edges in the smallest cut set, ठीक है ना, मतलब कि सारे की सारे जो भी पॉसिबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने नंबर ऑफ द एजेस को देखना है, ठीक है. इज कॉल्ड एज द एज कनेक्टिविटी ऑफ द ग्राफ, ठीक है, एज कनेक्टिविटी ऑफ द ग्राफ, जिसको कि हम लोग बोलेंगे डेल्टा जी. इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 1 देन दैट एज इज नोन एज ब्रिज, ठीक है. एंड कट सेट इज ओनली we discuss this in the context of the connected graph only. Okay, now when we discuss the concept of cut set in terms of vertices, then the number of the vertices in the smallest cut set would be equal to what? Vertex connectivity, which is denoted by k of g. Okay, okay. And a connected graph is said to be separable if its vertex connectivity is 1. Okay, and that vertex is known as articulation point. Okay, k of g is less than or equal to lambda of g is less than or equal to delta of g. k of g इस केस में क्या है? वर्टेक्स कनेक्टिविटी है. lambda of g इस केस में क्या है? एज कनेक्टिविटी है. एंड डेल्टा ऑफ जी क्या है? मिनिमम पॉसिबल डिग्री है, राइट? टू ग्राफ्स आर सेड टू बी होमोमॉर्फिक. मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं. इफ यू आर आस्क्ड कि होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, यू ईदर रिमूव और ऐड अ वर्टेक्स विद डिग्री 2, ठीक है. मतलब कि ये है हमारा जो ग्राफ है वो अगर हमारा ऐसा रहेगा, एंड इफ वी ऐड दिस वर्टेक्स विच हैज अ डिग्री 2, राइट, तो ये दोनों ग्राफ क्या होंगे? होमोमॉर्फिक होंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग, ठीक है. दो तीन हमको ग्राफ जो है वो दिए रहेंगे एंड वी नीड टू चेक वेदर दैट ग्राफ इज द मैचिंग ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ और नॉट. डिग्री ऑफ vertices should be less than or equal to 1 for all the vertices which belong to that matching graph. Okay, in the matching graph no two
vertices, sorry, no two edges should be adjacent, क्योंकि if the edges would be adjacent then तो डिग्री उस केस में क्या हो जाएगी, मिनिमम 2 हो जाएगी, राइट। मैक्सिमल मैचिंग का मीनिंग क्या है भैया, कि इफ नो अदर वर्टिसेस, सॉरी, इफ नो अदर एजेस कैन बी एडेड टू दैट ग्राफ, क्योंकि डिग्री हमको लेस देन और इक्वल टू 1 ही चाहिए, राइट। तो इस केस में मैक्सिमल ही होगा, क्योंकि मैक्सिमल कितनी एजेस हो सकती है उस ग्राफ में, राइट। इफ नो अदर एजेस ऑफ ग्राफ कैन बी एडेड टू एन। मैक्सिमम मैचिंग का मीनिंग क्या भैया, कि अ मैचिंग ऑफ अ ग्राफ विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ द एजेस, मैचिंग ही हमको चाहिए, राइट। नाउ मैचिंग जो है वो मोर देन 1 भी हो सकता है, राइट। तो हमको वैसी मैचिंग को देखना है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा एजेस होंगे, तो उस केस में हम लोग उसको बोलेंगे मैक्सिमम मैचिंग, ठीक है। टू फाइंड द मैचिंग नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन एडजेसेंट एजेस स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स विथ मिनिमम डिग्री। ओके, तो मैचिंग नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के केस में मैचिंग नंबर को आप निकालिए, तो what we need to find, we need to find the maximum number of non-adjacent edges and we need to start from the vertex which has the minimum degree, okay। perfect matching का मतलब क्या है, कि each vertex has degree 1। number of the perfect matching in case of a complete graph will be equal to 2n factorial upon n factorial into to the power n, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखने का है, राइट। 2n factorial upon n factorial into to the power n। लाइन कवरिंग का मतलब क्या है, कि डिग्री ऑफ द वर्टिसेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। लाइन कवरिंग डज नॉट एग्जिस्ट इफ ग्राफ हैज आइसोलेटेड वर्टेक्स, इफ जी हैज आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगर आइसोलेटेड वर्टेक्स है भैया, ठीक है, लाइन कवरिंग कैसे हो सकती है, राइट। इफ जी हैज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स देन द लाइन कवरिंग वुड नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड वर्टेक्स से यानी कि वो डिस्कनेक्टेड है, राइट। एंड वी वांट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन ऑब्वियसली इस केस में लाइन कवरिंग नहीं हो सकती। इफ ग्राफ हैज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स दैट मींस दैट वर्टेक्स हैज डिग्री 0, ओके। नाउ इस केस में मिनिमल लाइन कवरिंग होगी, बिकॉज डिग्री तो कुछ भी हो सकती है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो मिनिमल, राइट। यानी कि we cannot, if no edge can be deleted, if no edge can be deleted, right, then minimal line covering हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। मिनिमम लाइन कवरिंग का मीनिंग क्या है, कि भैया मिनिमम नंबर ऑफ द एजेस सच दैट द डिग्री ऑफ वर्टिसेस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। अभी ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, मिनिमम लाइन कवरिंग ग्राफ है, उसका हमको लाइन कवरिंग जो है वो निकलना है। तो यानी कि हमको ऐसा ग्राफ चाहिए जिसमें कि सेम टू सेम हो, डिग्री ऑफ द वर्टिसेस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। मिनिमम का मीनिंग क्या है, कि भैया इसमें मिनिमम नंबर ऑफ द एजेस होने चाहिए हमारे पास में, राइट। तो वो एजेस को मैं बोलूंगा अल्फा 1, ठीक है। और याद रखिए, नो मिनिमल कवरिंग, नो मिनिमल लाइन कवरिंग शुड कंटेन अ साइकिल, ठीक है। नो मिनिमल लाइन कवरिंग कैन कंटेन अ साइकिल, ठीक है। Now we will discuss about the independent line set. Independent line set का मीनिंग क्या होता है, राइट। इंडिपेंडेंट लाइन सेट क्या ना, यानी कि क्या है, कि ये नॉन एडजेसेंट एजेस, ठीक है ना, इसके बारे में बात जो है वो हम लोग अभी करने वाले हैं। यस, ओके। Let G V comma E will be the graph subset L of E, L of E। हम सबसेट जो है वो निकाल रहे हैं किनका, edges का, is called as independent line set if no two edges are adjacent, ठीक है। Suppose let us say कि हमारे पास में ऐसा ग्राफ है, राइट, एक ए बी सी डी, ठीक है, ई एंड एफ।
एंड मैं इसमें एल ले लेता हूँ, एक सबसेट ले लेता हूँ, बी डी एंड ई एफ, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट लाइन सेट है क्या, बी डी एंड ई एफ, ये भैया नॉन एडजेसेंट एजेस हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये independent line set है, right? Now if we talk about A, B and EF, then A B हमने ले लिया है और EF भी ले लिया, तो ये भी लाइन सेट है, मतलब इंडिपेंडेंट लाइन सेट है, राइट। तो नाउ इस केस में क्या होगा ना कि वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम और मैक्सिमल इंडिपेंडेंट लाइन सेट का मीनिंग क्या होता है कि भैया हमको नो अदर एजेस ऑफ जी कैन बी एडेड टू वी, ठीक है ना। नॉन एडजेसेंट एजेस ही है, वी कैनॉट ऐड मोर नंबर ऑफ द एजेस इनटू इट, क्योंकि इफ वी ऐड any other age, then this will not be called as independent line set। और जिस भी सेट इंडिपेंडेंट लाइन सेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ द एजेस ऐसी रहेंगे जो कि नॉन एडजेसेंट है, उनको हम लोग बोलेंगे बीटा वन, ठीक है। देन अल्फा वन प्लस बीटा वन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द वर्टिसेस, ये हमको ध्यान में रखने का, ठीक है। हमने क्या देखा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लाइन कवरिंग, ओके। लाइन कवरिंग वी वर डिस्कसिंग, राइट। लाइन कवरिंग में हमने देखा यार कि वी वांट डिग्री ऑफ द ईच वर्टिसेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। उससे हमने निकाला कि मिनिमम लाइन कवरिंग में कितनी एजेस होंगी, वो होगी हमारी अल्फा वन। और फिर बाद में देखा यार कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द एजेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द इंडिपेंडेंट लाइन सेट वो होगा बीटा वन। अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ वी, दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ द वर्टिसेस, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्टेक्स कवरिंग, ठीक है। वर्टेक्स कवरिंग का मीनिंग क्या है भैया कि अ सबसेट K of V is called as vertex covering of G if every edge of G is incident with a vertex in K। यानी कि लेट अस से ये हमारे पास में ग्राफ है और हमने ये सेट ले लिया B और D, ठीक है। तो इससे सारे की सारी एजेस जो है वो कवर अप हो जाएंगे, राइट। तो वी कॉल इट एज वर्टेक्स कवरिंग, राइट। नाउ इस केस में क्या होगा, मिनिमल हमको ढूंढना पड़ेगा, राइट, क्योंकि एक भी वर्टेक्स को, दैट मीन्स कि वी कैन नॉट डिलीट, राइट, नो वर्टेक्स कैन बी डिलीटेड। मिनिमम वर्टेक्स कवरिंग का मीनिंग क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ द वर्टेक्स कितने होंगे उस वर्टेक्स कवरिंग में, उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा टू। वर्टिसेस है, लाइन कवरिंग में क्या था, एजेस था भैया, ठीक है। एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट लाइन सेट के जैसा आएगा इंडिपेंडेंट वर्टेक्स सेट, और इस केस में भी मैक्सिमल एंड मैक्सिमम ही आएगा, क्यों, क्योंकि वी नीड टू फाइंड द वर्टिसेस दैट आर नॉट एडजेसेंट, राइट। तो मैक्सिमम हम लोग जो है वो खींच सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ द वर्टेक्स B2, तो अल्फा टू प्लस बीटा टू की वैल्यू भी नंबर ऑफ द वर्टिसेस ही होगी, ठीक है। नाउ अ क्लिक क्या होता है, क्लिक एक टर्म होता है सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ में, राइट, इज अ कंप्लीट सब ग्राफ that is not contained in any larger subgraph। तो ये एक हमारा ग्राफ है, तो K4, राइट, we cannot take the K3 over here, ठीक है। तो यहाँ पे खाली K4 ही एक होगा हमारा क्लिक, राइट। now we will discuss about, तो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो तो खत्म हो चुका है। सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फंक्शंस आर रिमेनिंग। वन वन फंक्शन को कैसे निकालेंगे भाई, इस पर्टिकुलर सेट में हमारे पास में n m है एलिमेंट्स, और इस पर्टिकुलर सेट में हमारे पास में n एलिमेंट्स है। तो इंजेक्टिव NCM इंटू m फैक्टोरियल, ये होगा टोटल नंबर ऑफ द इंजेक्टिव फंक्शन, यानी कि वन वन फंक्शन। सर्जेक्टिव का फॉर्मूला है ये n टू द पावर m माइनस NC1 इंटू n माइनस वन रेज टू पावर m प्लस NC2 n माइनस टू टू द पावर m, ठीक है ना। ऐसे कर करके आपको ये निकालना पड़ेगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या भैया कि n n है एंड वन वन एंड ऑन टू है। इस केस में टोटल नंबर ऑफ द फंक्शंस वुड बी n फैक्टोरियल, राइट। अभी ये एक है कि भैया n फैक्टोरियल है और इसको हमको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। P1 ये एक प्राइम नंबर है, इसका एक्सपोनेंट क्या रहेगा, राइट। तो E1 वुड बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन का हम लोग इसमें यूज करेंगे। n1 अपॉन p1 का GIF लेंगे प्लस n1 अपॉन p1 का स्क्वायर का GIF लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस केस में एक्सपोनेंट, ठीक है ना, वो निकाल सकते हैं, राइट। नाउ इफ वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ द डिवाइजर्स, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है इस केस में कि खाली प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट उसको कर दो, और जो भी पावर है +1 करके सारे पावर्स का +1 करके सबको मल्टीप्लाई हमको कर देने का है, राइट, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ठीक है। अभी नंबर ऑफ द स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल विथ n वर्टिसेस कंप्लीट ग्राफ, तो n टू द पावर n-2, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो हमको याद में रखने का है। डायरेक्टेड ग्राफ के केस में एक थ्योरम जो है वो होता है, वो ये है, देखिए वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थ्योरम इन द बुक प्रिपरेशन, राइट, कि मतलब हैंड शेकिंग थ्योरम जो होता है कि सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस विल बी इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ द एजेस, राइट। इसको अगर हमको डायरेक्टेड एजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का है तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, राइट। इनकमिंग एजेस के डिग्री का सम सारे के सारे वर्टिसेस में, हाँ, वो होगा आउटगोइंग जो भी एजेस हैं उनकी डिग्रीज का सम फॉर ईच वर्टिसेस, एंड दिस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द एजेस, नॉट 2 into e, ओके। लाइन ग्राफ का कॉन्सेप्ट इस केस में क्या होता है, लाइन ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि एजेस जो होंगी वो बनेंगी वर्टिसेस, और वर्टिसेस जो होंगे वो बनेंगे हमारी एजेस। इसको हम लोगों को मतलब कि क्या करना है कि एजेस को नाम दे दो आप, ठीक है, और फिर एजेस को वर्टिसेस से बना दो, तो ये बनेगा हमारा लाइन ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ ऑफ अ साइकिल ग्राफ विल ऑलवेज बी द साइक्लिक ग्राफ, लाइन ग्राफ ऑफ अ यूलर ग्राफ विल ऑलवेज बी द यूलर ग्राफ, लाइन ग्राफ ऑफ अ हैमिल्टोनियन ग्राफ, सॉरी, लाइन ग्राफ ऑफ अ यूलर ग्राफ विल ऑलवेज बिकम द हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है। यूलर ग्राफ का यूलर रहेगा, यूलर का हैमिल्टोनियन भी रहेगा, ठीक है। लास्ट पेज है ये, ओके। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ क्या होता है, जी यूनियन जी कॉम्प्लीमेंट विल बी द के एन, ठीक है, n into n-1, ये एजेस बाय रहेंगी अपनी, ठीक है, समझ में आ गई ये इसको छोड़ देने का अपने को। हाँ, ये एक है फॉर्मूला कि भैया -n-ck, ठीक है ना, ये क्या हो सकता है, -1 रेज़ टू पावर k n+k-1, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन जो है वो कुछ-कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें इस फॉर्मूले का यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। If odd length of a cycle is present in a graph, then that graph is not bipartite. Bipartite का मीनिंग मैंने आपको समझा था, अगर odd length की साइकिल ग्राफ में प्रेजेंट है, यानी कि आप इस ग्राफ में दे सकते हैं, राइट, 1 2 3 4 और 5 ऑड साइकिल है प्रेजेंट, राइट, तो दिस ग्राफ इज नॉट बाइपर्टाइट ग्राफ, ठीक है। गिवन अ कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑन 6 वर्टिसेस, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ है भाई हमारा, कंप्लीट है यानी कि ईच वर्टेक्स is connected to every other vertex, right? In how many ways you can choose a direction for edges so that there are no directed cycles, ठीक है। 6 फैक्टोरियल, ये आपको याद रखने का है, फॉर n वर्टिसेस कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ n फैक्टोरियल ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें कि डायरेक्टेड मतलब कि कंप्लीट, नो डायरेक्टेड साइकिल्स, राइट, एक साइकिल नहीं बनेगी डायरेक्टेड में। अच्छा, पॉजिटिव नंबर दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू 210, सबसे पहले तो हमको इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर जो है वो निकालने के हैं, और सब में से -1 करके सबको मल्टीप्लाई करने का है हमको, राइट। तो ये बन जाता है 48, तो 210 में रिलेटिवली प्राइम नंबर कितने होंगे, 48 होंगे। पीटरसन ग्राफ, ये ग्राफ होता है भैया पीटरसन यार, ठीक है ना। इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। 5 हमको ऐसे करने के हैं, एंड देन ये और ये, तो कैसे ये करने का है, फिर ऐसे और इसको कनेक्ट करने का है, राइट। ये बन गया हमारा पीटरसन ग्राफ, सही है क्या।
बिल्कुल सही बात है। लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट वर्टिसेस ऑफ द पीटरसन ग्राफ इज 4। लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट वर्टिसेस का मतलब क्या, मैंने आपको बोला था कि भैया ऐसे कितने, मतलब वो हमको सेट निकालना है जिसमें कि हम लोग वर्टिसेस डालें और वो वर्टिसेस एडजेसेंट ना, राइट। तो ये 1 2 3, राइट, 4 4 4 ही है, राइट, तो 4 हो गए। एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट लाइन सेट वुड आल्सो बी इक्वल टू 4। ठीक है, हो गया खत्म यार अपना, ये खत्म हो गया अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हो गया पार्ट 2 एंड वी आर फिनिशिंग विद द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नाउ। ठीक है।